So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture number 1 of our new topic analytic functions and CR equations. Basically, I'm providing you proper notes, question practice so that you can score good in GATE and NET exams. Basically, myself, Ayush Gupta, I'm gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So, let's start our today's lecture. So, in lecture number 1, we are going to see these topics analytic function, CR equations, and we will also see the two methods to find the analytic function. For example, if I have any function f of z, so can I say that this function is analytic or not? So we can simply find out these methods, and then we will see the entire function and harmonic functions, and then we will see the PYQ questions of NET and GATE exam. Okay, so right on the first heading, analytic function. Analytic function. So इसमें लिखिए basically a complex valued function let's suppose I have taken a function f such that जिसकी एंट्री मींस डोमेन भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है और रेंज भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है सच दैट कि हमारे पास जो f ऑफ z आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि u is the function of xy plus iota times it is v and it is the function of xy. अगर मेरे पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है then or you can say a complex valued function f of z is said to be analytic function is said to be analytic function if the function f of z is differentiable, or you can also write here that it is analytic function at any point. For example, if I said that it is analytic function at any point, let's suppose z0, which belongs to the complex numbers. So it is analytic at z0 if the function f of z is differentiable at, या फिर आप लोग ये कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल होगा इन every neighborhood, differentiable in every neighborhood of z0. Okay, so see, हमारे पास अगर कोई भी complex valued function, let's suppose f of z is a complex valued function, then it is said to be analytic at any point z0 अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो जाए इन एवरी नेबरहुड ऑफ z0. फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज कि मैंने कोई डोमेन लिया एंड दिस डोमेन इज अवर डोमेन d, और इस डोमेन में मैंने कोई पॉइंट लिया जो कि है z0, और अगर मैंने इस z0 का कोई भी एक नेबरहुड ले लिया, लेट्स सपोज दिस इज द नेबरहुड ऑफ z0, तो इस नेबरहुड में किसी भी अगर मैं पॉइंट को लूं तो हर एक पॉइंट पर हमारे पास उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट होना चाहिए. मींस ये जो हमारे पास f डैश एट z0 है ये एग्जिस्ट होगा, और अगर मैं लेट्स सपोज कि z0 के प्लेस पर कोई अदर पॉइंट रख देता हूं, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टेकन z0 प्लस h, तो इसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट होगा. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टेकन f0 z0 माइनस h, देन ऑल्सो इट्स डेरिवेटिव विल एग्जिस्ट. तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जो कि किसी पॉइंट के पूरे नेबरहुड के हर पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज द एनालिटिक फंक्शन. ओके, सो इस यहां से हम एक नोट लिख सकते हैं, राइट डाउन वन नोट फ्रॉम हियर. फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट f ऑफ z इज एनालिटिक, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो फंक्शन है f ऑफ z वो एनालिटिक फंक्शन है, f of z is analytic function, which implies that f of z is a differentiable. Basically these notes are very most important notes, because इन notes की help से हम लोग
CSIR नेट एंड गेट के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं. नोट नंबर 2, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट f of z is differentiable, if f of z is differentiable function, so it will not implies that f of z is analytic. यानी कि अगर मेरे पास कोई भी एक एनालिटिक फंक्शन है तो वो हमेशा डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा, बट अगर वो डिफरेंशिएबल है तो मैं गारंटी नहीं कह सकता कि वो हमारे पास एनालिटिक हो. फॉर एग्जाम्पल इसका वो एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि f of z is equals to mod of z square, so definitely this function at z is equals to 0 पर हमारे पास डिफरेंशिएबल होता है. इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. बट अगर मैं इसी फंक्शन की बात करूं f of z is equals to mod z square, so it is not analytic function, not analytic at any point. अब ऐसा क्यों होता है, तो ये जब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सीआर इक्वेशन, तब ये आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सीआर इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता फंक्शन, इस वजह से ये किसी भी पॉइंट पर हमारे पास एनालिटिक नहीं होता. तो आगे मैं इसको बताने वाला हूँ. ओके, सो राइट डाउन द नोट नंबर 3. अच्छा, ओके, सो लेट्स सी, क्या नोट नंबर 2 से मैं कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे नोट नंबर 3 में. अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कि मुझे कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारे पास एनालिटिक होगा. बट अगर मैं ये कहूँ कि लेट्स सपोज आई हैव अ फंक्शन f of z is not differentiable, not differentiable. अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल नहीं, so it clearly implies that f of z is not analytic, is not analytic. एंड बेसिकली इसे हम कंट्रा पॉजिटिव भी कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन एनालिटिक था तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा. अगर हमारे पास कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मैं गारंटी नहीं कह सकता कि वो एनालिटिक है. बट अगर मेरे पास कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, सो क्लियरली इट इज नॉट एनालिटिक. क्लियर? ओके, सो राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, CR इक्वेशन. CR equation. Okay, so write down here, basically a complex valued function, complex valued function. Let's suppose the function we have here is f of z is equals to u plus iota v, where u and v are basically the functions of x and y, is said to be basically satisfy is said to be satisfy CR equations if. so मैं कब बोल सकता हूं कि ये हमारे पास CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन, लेट्स सपोज कि अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पर जो हमें फंक्शन में u एंड v गिवन है, इट इज u एंड इट इज v, तो अगर मैं इन u एंड v का यूज करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल हो जाए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y के, और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि if we have the partial derivative of u with respect to y इक्वल हो जाए नेगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x के. या फिर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैं यहाँ कहता हूँ ux इक्वल होगा vy के, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि uy इक्वल होगा माइनस vx के. then in if these two properties basically satisfied, and basically these two equations are called as the CR equations, CR इक्वेशन. और अगर कोई फंक्शन हमारे पास इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो मैं बोलूंगा कि वो फंक्शन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. एंड बेसिकली दिस आर कॉल्ड द कार्टेशियन
form of CR equation. These equations are called the Cartesian form of CR equations. तो इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि Cartesian form of CR equation क्या हो जाएगा. It is simply ux is equals to vy and uy is equals to minus vx. This is the Cartesian form of CR equation. But अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ, let's suppose what is the polar form? Polar form of CR equation. So अगर मुझसे पोलर फॉर्म के बारे में कहा जाएगा तो उस केस में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगा, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव द फंक्शन f of z is equals to u which is the function of xy plus v which is function of xy. It is basically our Cartesian form. ये अभी मुझे Cartesian form में given है. अगर मैं इसे पोलर फॉर्म में चेंज कर दूं तो ये फंक्शन हमारे पास कैसे दिखेगा? जो हमारे z है वो चेंज हो जाएगा r टाइम्स e पावर आयोटा थीटा में, और जो फंक्शन ऑफ x, y थे वो चेंज हो जाएंगे हमारे पास r एंड थीटा में. So this function becomes in polar form, it is f of r times e power iota theta is equals to u of the function of r and theta plus v of function of r and theta. तो अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन पोलर फॉर्म में गिवन है तो मैं ये बोलूंगा कि f of r times e power iota theta function satisfy the CR equation if the first property, first year CR equation हमारे पास क्या हो जाएगी? It becomes UR is equals to 1 upon R times U theta, and the second one becomes U theta is equals to minus R times, sorry, it is not UR, it is actually V theta. Okay. So do the correction here, it is V theta and here it is VR. So these two equations are basically called as the CR equation in polar form. Okay. और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इट इज नथिंग बट del u del r is equals to 1 upon r times del v del theta, and this we can write here del u del theta is equals to minus r times del v del r. So these equations are basically called as the CR equation in polar form. Clear? Okay. So now we will see basically the two methods for finding the analytic functions. So write down here the method number 1. Basically with the help of these methods you can find that any function is analytic or not, और इसकी हेल्प से हम लोग easily नेट के क्वेश्चंस को कर सकते हैं. सो मेथड नंबर 1 क्या बोलता है? इसमें लिखिए अ फंक्शन f of z, complex valued function f of z is analytic. कोई फंक्शन एनालिटिक होगा इफ एंड ओनली इफ वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे. जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होगी मेरे पास कि वो फंक्शन, लेट सपोज कि मेरे पास कैसे दिख रहा है, ये फंक्शन हमारे पास है कुछ f of z इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v टाइप का फंक्शन हमारे पास है. तो इस केस में क्या होना चाहिए कि जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल u विद रिस्पेक्ट टू x, uy, vx एंड vy, ये सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करने चाहिए. द सेकेंड केस कि अगर मैं यहां पूछता हूं कि ठीक है अगर मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट तो कर गए, फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि जितने भी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स आए हैं ये सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स should be continuous. And the third property will be here. The third property becomes कि जो हमारे पास फंक्शन है f of z must satisfy the CR equations. यानी कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f of z और वो इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो मैं ये बोलूंगा कि वो जो हमारे पास फंक्शन f of z था इट्स द एनालिटिक फंक्शन.
So it is our method number 1. And write down the method number 2 also here. So method number 2 हमारे पास क्या हो जाएगा मेथड नंबर 2, इसमें लिखिए अ फंक्शन f of z is called analytic if the partial derivative of f with respect to actually z bar and it is equals to 0. अगर हमारे पास मैं f का पार्शियल डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू z बार और वो मेरे पास 0 आ जाए, तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो एक एनालिटिक फंक्शन होगा. क्लियर? सो बेसिकली दीज आर द टू मेथड्स वी हैव स्टडीड. तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन दोनों मेथड्स पर आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ. सो राइट डाउन द क्वेश्चन हियर. सी, अब हम लोग इस क्वेश्चन को उन दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे. सो फर्स्टली सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा रहा है कि शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ मींस दिस इज द फंक्शन and it is holomorphic function. So what is holomorphic function? Basically holomorphic is nothing but holomorphic को ही मैं analytic function भी बोल सकता हूँ. Analytic function and holomorphic function are same. So holomorphic means actually analytic function की बात की जा रही है. And then we have to find its derivative also. Okay. So first of all, whatever the function we have here, let's write here. Let the function we have f of z is equals to e power x times cos y प्लस आयोटा टाइम्स साइन वाई. हमें ये गिवन है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लेट्स सी. यहाँ पर हम cos y प्लस आयोटा साइन y को e पावर y लिख सकते हैं. एक्चुअली इट इज e पावर आयोटा y which is e power iota y by Euler's theorem. So this becomes e power x times e power iota y. So it is e power x plus iota y and clearly x plus iota y हमारे पास z होता है. So it becomes e power z. So our function becomes f of z is equals to e power z. तो अगर मैं यहाँ पे अपने मेथड नंबर 2 का यूज करूँ, सी मेथड नंबर 2 क्या बोलता है हमसे. मेथड नंबर 2 कि हमारे पास फंक्शन f of z एनालिटिक होगा, like f of z is analytic if the partial derivative of f with respect to z bar means z conjugate हमारे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए. तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारे पास क्या फंक्शन है, अगर मैंने इसको z बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, सो इट बिकम्स डेल डेल z बार ऑफ e पावर z एंड डेफिनेटली e पावर z में मींस इस फंक्शन में z बार तो कहीं नहीं आ रहा, तो ये तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा 0. सो यस वी आर गेटिंग द 0 व्हिच इंप्लाइज दैट द फंक्शन f of z is equals to e power z is analytic function, or you can say it is the holomorphic function. So by first method we can see here. अब हमसे यहाँ पूछा गया था इसके डेरिवेटिव के बारे में. डेरिवेटिव तो मैं इसको आपको लिखा देता हूँ कि जब कभी भी हमारे पास कोई फंक्शन f एनालिटिक है, इफ f of z is equals to u plus iota v is analytic, then उसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, लाइक f डैश z क्या हो जाता है, इट इज नथिंग बट partial derivative of u with respect to x plus iota times partial derivative of v with respect to x. It is the formula जो कि आप लोग को नेट के क्वेश्चंस करने में बहुत ही काम आएगा. ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस हियर. यहाँ पे हमारे पास क्या है फंक्शन, सी दिस इज द फंक्शन f of z is equals to e power x cos y plus iota y. तो मैं इसको लिख लेता हूँ. मेरे पास फंक्शन है f of z is equals to e power x into cos y प्लस आयोटा टाइम्स ई पावर एक्स इंटू साइन वाई. तो अगर मुझे यहाँ क्या निकालना है, एफ डैश जेड निकालना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपने इस पार्ट को मैंने u मान लिया, इसे मैंने v मान लिया, तो यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूँ, दिस बिकम्स दी डी बाई डी एक्स ऑफ u विच मीन्स ई पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स साइन वाई. सो क्लियरली y के जो टर्म्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, वो तो हमारे पास कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, सो इट बिकम्स cos y एंड e पावर x का डिफरेंशिएशन बिकम्स e पावर x प्लस आयोटा टाइम्स
Now again sin y will come outside and e power x का differentiation becomes e power x. So this is the derivative of f we have here. Okay. So इस क्वेश्चन को हमने सेकंड मेथड से किया. So हम लोग इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से भी देखते हैं. लेट्स सपोज मैंने क्या किया, अब मैंने मेथड नंबर 1 अप्लाई किया. सो मेथड नंबर 1 से क्या मैं इसको एनालिटिक प्रूफ कर सकता हूँ. सो मेथड नंबर 1 क्या कहता है, वो कहता है कि f ऑफ z हमारे पास एनालिटिक होगा अगर हम तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दें. पहली कंडीशन क्या होती है कि उसके जितने भी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, मींस जितने भी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करने चाहिए. फर्स्ट कंडीशन ये बोलती है. तो अगर मैं देखूं तो हमारे पास u ऑफ एक्स वाई क्या बन रहा है हमारे फंक्शन में. सो u ऑफ एक्स वाई बिकम्स e पावर x cos y एंड v ऑफ एक्स वाई क्या बनेगा, इट इज नथिंग बट e पावर x इंटू साइन वाई, जो कि हमने अपने फंक्शन से लिख लिया. तो अगर मैंने इसका x निकाला, ux निकाला पार्शियल डेरिवेटिव, सो इट बिकम्स e पावर x cos y जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज ट्रू. अगर मैंने uy निकाला, सो cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास माइनस के साइन y, सो माइनस e पावर x इंटू साइन y, इट ऑल्सो एग्जिस्ट्स. नाउ अगर मैंने vx निकाला, सो इट इज e पावर x साइन y एग्जिस्ट्स. एंड अगर मैंने vy निकाला, सो इट बिकम्स e पावर x cos y, इट ऑल्सो एग्जिस्ट्स. तो यानी कि यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव्स थे वो तो हमारे पास एग्जिस्ट कर गए. अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या कहता है कि जितने भी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स थे वो सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए. ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स शुड बी कॉन्टिन्यूअस. चलिए चेक करते हैं हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव क्या आए थे. हमारे पास आए हैं, अच्छा दीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव्स जो कि हमें ऊपर मिले. लेट्स सी, दीज आर अवर पार्शियल डेरिवेटिव्स. तो अगर मैं यहाँ देखूं तो हमारे पास cos y, sin y and cos y. We know that clearly that since sin y means sin functions and cos functions जो हमारे पास होते हैं and cos y are continuous functions. Clearly these are the continuous functions and e power x सभी जगह पे e power x है. Clearly e power x is also continuous function. तो अगर मैं किन्हीं दो continuous functions को multiply करता हूँ, means one is this continuous function and this continuous function. तो अगर मैं किन्हीं भी दो continuous functions को multiply करता हूँ, so product will also continuous. So the product of continuous functions is also continuous. तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसे, since the product is also continuous, which implies that all the partial derivatives जो कि हमारे product से ही बने हैं, all the partial derivatives are continuous. All the partial derivatives are continuous. Now we will solve the third option also. Third option हमारे पास क्या बोलता है, थर्ड ऑप्शन ये कहता है कि हमारे पास जो भी फंक्शन है f of z, it must satisfy the CR इक्वेशन. ये हमारे पास CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो क्या ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, लेट्स सी. जो हमारे पास फंक्शन है f of z वो हमारे पास क्या था, इट इज e पावर x cos y प्लस आयोटा टाइम्स e पावर x sin y, ये हमारे पास गिवन था. और CR इक्वेशन के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं. पहली कंडीशन क्या होती है कि ux vy के बराबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि uy हमारे पास माइनस ऑफ vx होना चाहिए. चलिए चेक करते हैं. तो ux हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली अवर u एंड दिस इज अवर v. तो अगर मैंने यहाँ चेक किया अपने u के लिए, सो ux हमारे पास क्या आ रहा है, ux हमारे पास आ जाएगा e पावर x इंटू कॉस वाई, एंड vy क्या हो जाएगा, vy sin y का डिफरेंशिएशन विच इज cos, सो इट बिकम्स e पावर x इंटू कॉस वाई. सी दीज आर इक्वल, मीन्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही. अगर मैंने यहाँ पे uy निकाला, सो uy क्या हो रहा है, इट इज माइनस e पावर x साइन y, एंड क्लियरली vx क्या हो जाएगा, इट इज एक्चुअली
e power x cos y. So clearly I can say that uy is equals to minus of vx. So this property also satisfies. So which implies that कि f of z satisfy our CR equation. तो अगर f of z हमारे पास इन तीनों ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी एंड थर्ड प्रॉपर्टी, सो वी कैन से दैट यस आवर फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन. क्लियर? सो नाउ वी विल सी द PYQ क्वेश्चंस जो कि हमारे पास CSIR नेट एंड गेट में आए हुए हैं on the basis of this concept. Okay, now let's see. This question comes in 2017 net, and in this question it is given that let p of z is equals to this polynomial where a naught, a1, an minus 1 are complex numbers, and let p of z is this. If mod of p of z is this for all z mod z is equal or less than 1, तो हमें यहाँ पे qz and pz के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है. ओके, नाउ लेट्स सी. सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले क्या गिवन है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ देखूँ तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे n की वैल्यू को मैं यहाँ पे कुछ मान सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि मैंने क्या ले लिया, लेट n इज इक्वल्स टू 1. n की वैल्यू को मैंने 1 पुट कर लिया, तो हमारे पास p ऑफ z क्या बन जाएगा. p ऑफ z बिकम्स, इट इज z पावर 1 प्लस a नॉट. ये हमारे पास हो जाएगा p ऑफ z की वैल्यू. और फिर हमें यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो p ऑफ z के लिए एक कंडीशन गिवन है. इट इज द कंडीशन कि अगर मैं p ऑफ z का मॉडुलस वैल्यू लूँ तो हमेशा इक्वल लेस देन 1 होना चाहिए. यानी कि अगर मैंने यहाँ क्या किया, मॉड ऑफ p ऑफ z लिया, तो ये वैल्यू हमेशा इक्वल और लेस देन 1 होगी, विच एम्प्लाइज दैट कि अगर मैंने यहाँ क्या किया, मॉड ऑफ z प्लस ए नॉट रख दिया, सो इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल और लेस देन 1 होनी चाहिए. बट अगर मैं इसको सेपरेटली सॉल्व करूँ, फॉर एग्जाम्पल मॉड ऑफ z प्लस ए नॉट, ये क्या होता है, दिस इज मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ ए नॉट. आई कैन राइट लाइक दिस. एंड यहाँ पे क्लियरली मॉड ऑफ z की वैल्यू हमें गिवन है इन द क्वेश्चन. मॉड ऑफ z हमेशा इक्वल और लेस देन 1 है. सो आई कैन यूज दिस इनइक्वालिटी हियर, मीन्स आई कैन यूज दिस इनइक्वालिटी बेसिकली हियर. मॉड ऑफ z की वैल्यू अगर मैं यहाँ यूज करूँ तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स इक्वल और लेस देन 1 प्लस mod of a. So from here what I can write, see, यहाँ से मुझे क्या मिल गया, so we get mod of z plus a naught की वैल्यू हमें मिल गई इक्वल लेस देन 1 प्लस mod of a naught. और इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, इट इज नथिंग बट mod of p of z इक्वल लेस देन 1 प्लस mod of a naught. बट अगर मैं यहाँ देखूँ तो mod ऑफ p ऑफ z की वैल्यू तो इक्वल लेस देन 1 होती है और मुझे 1 प्लस a नॉट मिल रहा है, यानी कि a नॉट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट which implies that, see, so which implies that actually mod of a naught is nothing but it is 0. ऐसा क्यों हो रहा है, सिंस डेफिनेटली mod ऑफ p ऑफ z की वैल्यू हमारे पास इक्वल लेस देन 1 थी, तो यहाँ पे डेफिनेटली इसे मुझे 0 ही लेना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो सके. So that's why we have taken it 0. So अगर मॉडुलस वैल्यू 0 है, which implies that कि a नॉट की वैल्यू भी हमारे पास 0 हो जाएगी. और अगर a नॉट की वैल्यू 0 हुई तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, so अगर मैंने a नॉट की वैल्यू 0 कर दी, so basically this function p of z becomes z plus 0. So it is nothing but p of z is equals to z हमारे पास आ जाएगा. Okay, now firstly solve this p of z. देखिए p of z हमारे पास ऑप्शंस में कहाँ आ रहा है, इसमें मुझसे कहा जा रहा है कि p of z is equals to z power n for all complex numbers. Yes, it is true क्योंकि मैंने n की वैल्यू 1 ली थी, so it is z power 1. So option number 3 is true. p of z is a constant polynomial. No, it is not a constant polynomial. जैसे ही मैंने यहाँ पे z को वेरी किया तो ये z भी चेंज हो जाएगा. It is a non constant. So 4 is incorrect. Now let's solve this second part q also. तो मैंने यहाँ पे p को सॉल्व किया था. Let me erase this part. Okay, so now write down the q. So क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, q of z is equals to this polynomial. तो अगर मैंने यहाँ q of z लिखा for n is equals to 1 तो मुझे क्या मिल जाएगा, it becomes actually it is 1 plus, then यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूँ so it becomes a naught and z, so it is actually z.
and because a n-1 के बाद n-2 आएगा, so it becomes negative. So this is our q of z. तो अगर मैंने यहाँ पे q of z के लिए कंडीशंस देखी, फॉर एग्जांपल मुझे क्या पूछा है ऑप्शन नंबर ए में, अब मैं ऑप्शंस लेके चलता हूँ. ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मुझसे वैल्यू पूछी जा रही है मॉड ऑफ q ऑफ z के बारे में. तो अगर मैं इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालूं, so it becomes 1 plus a naught z. So this becomes, actually it is equal or less than mod of 1 plus mod of a naught z. और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में मुझे गिवन है कि mod of z की वैल्यू इक्वल और लेस देन 1 होनी चाहिए. So I can write down here, it is, okay, so this becomes equal or less than, actually it is 1 plus, this can be written as mod of a naught into mod of z. So this can be written as 1 plus, क्योंकि इसकी वैल्यू इक्वल और लेस देन 1 है, so it can be written as 1 plus mod of a naught into 1. So this becomes 1 plus mod of a naught, and definitely a naught की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी. तो अगर मेरे पास मैं इसको 0 पुट करता हूँ, so from here this value will be vanished. So yes, q of z की जो मॉडुलस वैल्यू है वो 1 आ रही है, so which is true. So option number 1 is true. ऑप्शन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है कि q of z is a constant polynomial. Is it true? क्या q of z हमारे पास constant polynomial होगा? So अगर मैं देखूं तो it is actually true. क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने q of z निकाला, सी q of z में मैंने a नॉट को 0 रखा, तो ये क्या हो जाएगा? It is q of z is equals to 1, और 1 is a constant polynomial. So clearly that second option is also true. So the correct options are A, B and C are my correct options of this question. Okay. So now let's solve question number second. Basically this question asked in 2012 in NET exam. In this question it is given that which of the following function f are entire functions and have simple zero at z is equals to iota k. और यहाँ पे k हमारे पास इंटीजर है. ओके, सो नाउ लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है. सी इन दिस क्वेश्चन हमारे पास फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल्स टू e पावर सी z. ये हमारे पास फंक्शन है जहां पर c कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अगर मैंने यहाँ पर, मुझे क्या निकालना है एक्चुअली, मुझे निकालना है सिंपल जीरो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल जीरो. सी व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ सिंपल जीरो. तो सिंपल जीरो क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल? सिंपल का मतलब है कि अगर मैं अपने इस जीरो की ऑर्डर की बात करूं तो उसका ऑर्डर हमारे पास 1 आना चाहिए. और इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक्स देख चुकी है जो कि मैंने आई थिंक सिंगुलैरिटी के लेक्चर नंबर 1 में बताई थी कि हम लोग कैसे इसका ऑर्डर चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई फंक्शन है f ऑफ z, और अगर मैंने इस f ऑफ z में अपनी जीरो को रख दिया, किस पॉइंट पर? जीरो का पॉइंट हमें गिवन है, इट इज z इज इक्वल टू आयोटा के. अगर मैंने इस फंक्शन में आयोटा के रखा तो ये जीरो आ जाना चाहिए. फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, और अगर मैंने इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में आयोटा के रखा तो ये नॉन जीरो आ जाना चाहिए. यानी कि जिस भी डेरिवेटिव के लिए मुझे नॉन जीरो वैल्यू मिल जाती है, वही डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जीरो बन जाता है. जैसे कि मुझे यहाँ पे ऑर्डर 1 चाहिए तो मुझे सिर्फ 1 टाइम्स डेरिवेटिव करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू मेरे पास नॉन जीरो आनी चाहिए. अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारे पास सेटिस्फाई होती हैं तब मैं बोलूंगा कि मेरे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन सिंपल जीरो रखेगा. ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन. एफ ऑफ जेड हमारे पास गिवन है. अगर मैंने क्या किया, यहाँ पर आयोटा के रख दिया, सो इट बिकम्स ई पावर सी आयोटा के. अब बिकॉज यहाँ पे के हमारे पास क्या है, कोई भी इंटीजर. सो लेट्स सपोज मैंने क्या किया, मैंने के की वैल्यू को 1 ही पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा. सो इन दिस केस इट इज f iota and it is iota c, e power iota c, and definitely it is a non-zero value. Since it is non-zero value, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को ही फिलफिल नहीं कर रहा जो कि हमारे पास जीरो आना चाहिए था. So the fourth is incorrect option. Now let's solve this option number थर्ड. चलिए अब ऑप्शन नंबर सी हम सॉल्व करते हैं. ऑप्शन नंबर थर्ड में हमसे कह रहा है कि मेरे पास एक फंक्शन है f of z is equals to b टाइम्स
cos 2 pi iota z माइनस 1/4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर मैंने सपोज अपने फंक्शन को लिखा, इट इज b टाइम्स cos ऑफ 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, so it is 2 pi iota z minus 2 to the 4, so it becomes pi by 2. Now pi by 2 minus theta, let's suppose if I have taken minus common, तो minus उस cos के बाहर आता नहीं है, so it becomes cos of pi by 2 minus 2 pi iota z, और 90 degree minus theta, so it becomes b times sine of 2 pi iota z. This becomes, अगर मैंने अपने इस फंक्शन में लेट्स सपोज क्या किया, मैंने इस फंक्शन में अपने जीरो को रखा विच इज आयोटा के, तो हमें क्या मिल जाएगा, इट बिकम्स b टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई आयोटा स्क्वायर के, एंड आयोटा स्क्वायर इज बेसिकली -1, तो मैं -1 ही रख देता हूँ यहाँ पे, सो दिस बिकम्स एक्चुअली -1, सो इट इज माइनस टाइम्स के, और साइन के बाहर हमारे पास माइनस आ जाएगा, एंड क्लियरली इफ आई सी हियर, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ओके तो जैसे ही मैंने यहाँ देखा तो साइन के अंदर कैसे नंबर्स आ रहे हैं, साइन के अंदर मेरे पास एक इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, वो भी पाई की, सो क्लियरली ये वैल्यू हमारे पास जीरो होती है, सो दिस वैल्यू बिकम जीरो, तो इसका मतलब कि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गई। अब हम सेकंड कंडीशन के लिए चेक करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, अपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विल बी, इट इज 2 पाई आयोटा टाइम्स b टाइम्स साइन का हो जाएगा मेरे पास cos 2 पाई आयोटा z। सो अगर मैंने इस फंक्शन में अपने आयोटा के को रखा तो क्या मुझे नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी, इट बिकम्स 2 पाई आयोटा b इंटू कॉस ऑफ, इट इज 2 पाई आयोटा स्क्वायर के, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, सो इट इज एक्चुअली 2 पाई आयोटा b टाइम्स cos 2 पाई के, and even integral of pi will give us +1, so clearly it is 2 pi iota b which is a non-zero value, so yes, यहाँ पर इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा 1, यानी कि ये हमारे पास एक सिंपल पोल दे रहा है, सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी ऑप्शन नंबर सेकंड, इसमें हमें क्या फंक्शन है, f of z is equals to a times sin 2 pi iota z। अगर मैं ये देखूं तो ये तो बिल्कुल हमारे थर्ड ऑप्शन की जैसा ही है, लेट्स सी हमारे थर्ड ऑप्शन में हमें कैसा फंक्शन मिला था, साइन 2 पाई आयोटा z, और यहाँ पे भी हमें गिवन है साइन 2 पाई आयोटा z, एंड a एंड b आर द कांस्टेंट, वो तो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे a भी रख सकता हूँ, सो इट इज द सिमिलर क्वेश्चन विद 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट, ये तो हमें सेम फंक्शन ही दे दिया गया। नाउ लेट्स सॉल्व दिस ऑप्शन नंबर d ऑल्सो, सो लेट मी इरेज दिस पार्ट, ओके नाउ लेट्स सॉल्व दिस ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल्स टू दिस, जहां पर n की वैल्यू इक्वल और लेस देन 1 में ले सकता हूं, सो सपोज मैंने क्या लिया, लेट n इज इक्वल्स टू 1, तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए f ऑफ z क्या बन जाएगा, इट इज a1 z पावर 1 प्लस a नॉट, दिस इज अवर फंक्शन, और मुझे चेक करना है कि अगर मैंने इस फंक्शन में आयोटा के रखा तो क्या मुझे ये सिंपल पोल देगा, मींस क्या ये जीरो हो रहा है, लेट्स सी, इट इज a1 टाइम्स आयोटा के प्लस a नॉट, अच्छा a नॉट a1 ये सब क्या है, ये सब मेरे कांस्टेंट्स हैं, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कांस्टेंट की कुछ वैल्यू रख दी, सपोज मैंने a1 की वैल्यू यहाँ पर रख दी है आयोटा, एंड k की वैल्यू तो k एक इंटीजर है, लेट्स सपोज k हमारे पास 1 है, और a नॉट की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो क्या मिल रहा है मुझे, इट इज आयोटा इंटू आयोटा प्लस 1, so it is iota square is -1, so -1 and it is actually +1 will be cancelled out, so from here we are getting 0, okay, so now we will calculate the derivative which means f dash of z, क्या मिल जाएगा मुझे, it is a1 and a1 is a non-zero value, so clearly we can say that our function has a order of 0 1, which means yes, it has also a simple pole, sorry, it is a simple 0. So the correct options are A, B and C are my correct options. Okay, so now let's solve this question. This question is asked in 2013 net exam, and in this question it is given that let f
is a complex valued function. It is an analytic function. For z is equals to this, let uv belongs to basically uv हमारे पास क्या है, R2 से R में एक फंक्शन है such that कि ओके सो लेट मी राइट डाउन दिस. यहाँ पर जो u ऑफ एक्स वाई है वो हमारे पास रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन है एंड v ऑफ एक्स वाई इज नथिंग बट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन. यानी कि जो फंक्शन f ऑफ z होगा वो किस तरह से होगा, वो हमारे पास कुछ u ऑफ एक्स वाई, सॉरी इट इज u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा टाइम्स v ऑफ एक्स वाई होगा, जिसमें से इसे मैं रियल पार्ट ऑफ आवर फंक्शन बोलता हूँ और इसे मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ आवर फंक्शन बोलता हूँ. ओके सो इन दिस क्वेश्चन इज गिवन दैट क्या हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ. ऑप्शन नंबर ए, सो इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि अगर मैंने u का डबल टाइम मीन्स x के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन किया और u का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन किया तो उसका समेशन हमारे पास 0 आना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हमें क्या गिवन है. इट इज गिवन टू मी दैट f ऑफ z इज अ एनालिटिक फंक्शन. तो जब कभी भी हमारे पास, क्योंकि हमने पढ़ा है इट इज द मेथड नंबर 1, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि f ऑफ z अगर हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है, इफ f ऑफ z इज एनालिटिक फंक्शन, तो वो क्या एम्प्लाई करता है. सो बेसिकली इट एम्प्लाइज दैट कि f ऑफ z मस्ट सेटिस्फाई CR इक्वेशन. तो अगर f ऑफ z CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा विच एम्प्लाइज दैट कि ux हमेशा बराबर होना चाहिए vy के एंड uy बराबर होना चाहिए हमारे पास माइनस vx के. ये दो प्रॉपर्टीज हमारे पास सेटिस्फाई होंगी बिकॉज इट सेटिस्फाइज द CR इक्वेशंस. ओके सो नाउ लेट्स सी ऑप्शन नंबर 1. सो ऑप्शन नंबर 1 में अगर मैंने क्या किया, u का x के रेस्पेक्ट में डबल टाइम्स डेरिवेशन किया, विच मीन्स अगर मैंने यहाँ पर इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स u xx इज इक्वल्स टू v, बेसिकली इट इज yx. और फिर हमसे क्या बोल रहा है कि हमको u का y के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेशन चाहिए. तो अगर मैंने इस फंक्शन में y के रेस्पेक्ट में एक बार और डेरिवेशन कर दिया, सो इट बिकम्स पार्शियल डेरिवेटिव uy इज इक्वल्स टू माइनस vxy. और अब अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या मिल जाएगा मुझे, uxx प्लस uyy इक्वल्स टू vyx माइनस vxy. एंड वी नो दैट कि इन पार्शियल डेरिवेटिव्स vyx इक्वल होता है हमारे पास vxy के. So clearly these will be cancelled out and hence we get 0. So yes, option number 1 is true. It is correct option. Now let's solve option number 2 also. So let me erase this part. Okay. Yes. So let's solve option number 2. So option number 2 में भी हमारे पास ये तो given है कि f हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन है और मुझे यहाँ पर अगर वो एनालिटिक फंक्शन है तो क्लियरली वो CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करेगा. सो नाउ लेट्स सॉल्व ऑप्शन नंबर बी. इन दिस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि अगर मैं v को x के रेस्पेक्ट में डबल टाइम डेरिवेशन कर दूं और y के रेस्पेक्ट में डबल टाइम डेरिवेशन. सो लेट मी सी हमारे पास v कहाँ पे है, v ऑफ x हमारे पास ये गिवन है. अगर मैंने इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, सो दिस बिकम्स vxx इज इक्वल्स टू माइनस uyx. एंड क्लियरली अगर मैंने यहाँ पर v का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन किया फ्रॉम दिस इक्वेशन, यहाँ पे मैं y के रेस्पेक्ट में एक बार और डेरिवेशन कर रहा हूँ, सो हमें मिल जाएगा vyy इज इक्वल्स टू, इट इज एक्चुअली uxy. और जैसे मैंने इसको ऐड किया सो इट इज vxx प्लस vyy इज इक्वल्स टू माइनस uyx प्लस uxy. बेसिकली these two are equal, so it will be cancelled out and hence we get 0. So yes, option number 2 is also correct. Now let's see solve the option number C. Okay, so option number C में हमसे क्या कह रहा है, it is given to me that हमें u का x और y के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है एंड देन y एंड x के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है. So let's see. लेट्स सपोज मैंने क्या किया, पहले x के रेस्पेक्ट में मुझे डेरिवेशन गिवन ही था. अगर मैंने इस पूरे इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर दिया तो ये हो जाएगा मेरे पास uxy इक्वल्स टू
वाई वाई। फिर अगर मैंने अपने इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर दिया तो इट बिकम्स यू वाई, तो था ही x के रेस्पेक्ट में मैंने डेरिवेट कर दिया, सो इट इज लाइक दिस। और अब मैंने इन दोनों का सब्सट्रैक्शन मींस नेगेटिव, अगर मैंने इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा, यू एक्स वाई माइनस यू वाई एक्स इक्वल्स टू, it is u y y minus minus plus u x x, and from equation number second हमने अभी प्रूफ किया था कि v x x और v y y हमारे पास जीरो होता है, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास जीरो के इक्वल हो जाएगी, so that's why this value will be zero. So yes, option number third is also correct option. Now let's solve option number D. D में हमसे कह रहा है कि अगर मैं v को x और y के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करूं, ओके, तो हमारे पास अगर मैंने क्या किया, लेट्स सी, अगर मैंने अपने इस इक्वेशन को जहाँ पे v ऑफ x है इसको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, सो वी गेट v x y इक्वल्स टू माइनस u y y, वी गेट दिस। और फिर अगर मैंने अपने v को y x चाहिए मुझे, तो मतलब अगर मैंने अपने फर्स्ट इक्वेशन में v y के साथ x के साथ डेरिवेशन कर दिया, सो वी गेट v y x इज इक्वल्स टू u x x, वी गेट दिस। और अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ यानी कि वी एक्स वाई प्लस वी वाई एक्स, दिस विल बी एक्चुअली इट इज यू एक्स एक्स माइनस यू वाई वाई। बट हमने क्या पढ़ा था, हमने तो पढ़ा था कि अगर इनके बीच में पॉजिटिव साइन होता है तब इसकी वैल्यू जीरो होती है, सो दिस वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, इट इज नॉट करेक्ट, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 4 is incorrect. The correct options are A, B and C are my correct options of this question. Okay, so basically in tomorrow's lecture I will start what is the meaning of harmonic function, otherwise harmonic function and entire function मैं आज ही करा देता हूँ, let's suppose. Okay, so wait students, okay, so write down the next heading, मैं आज ही इसको complete करा देता हूँ, what is the meaning of actually entire function, इसमें लिखिए entire function, जिससे कि मैं कल और PYQs करा सकूँ आपको, so write down here entire function. So what is entire function? Basically a complex valued function, a function f of z is equals to, let's suppose it is u plus iota v, is called entire function if the f of z is analytic over c. मीन्स अगर f ऑफ z हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो कि पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ही हमारे पास एनालिटिक हो जाए तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटायर फंक्शंस. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया f ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 विच इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, विच इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी z ले लूँ, मीन्स अगर मैंने यहाँ क्या किया, कोई भी z नॉट ले लिया c से, तो वो हर z नॉट के लिए क्या होगा, ये हमेशा एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, इट इज अ एनालिटिक फंक्शन. सो इट इज ऑलवेज अ एनालिटिक फंक्शन विच एम्प्लाइज दैट कि ये जो f ऑफ z है इज इक्वल्स टू 1 इज एंटायर फंक्शन. तो ऐसा कोई भी फंक्शन ले लीजिए जो कि हमारे पास क्या होता है, हमेशा एक एनालिटिक फंक्शन देगा. फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक फंक्शन लिया f ऑफ z इज इक्वल्स टू e पावर x, सो इट इज आल्सो एंटायर फंक्शन. Sorry, it is not x, it is actually z. Okay, so it is actually e power z. Yes, because it is a complex function, so e power z is a entire function because ये पूरे पूरे complex plane पर हमारे पास एनालिटिक होता है. Okay, so write down the next heading, the harmonic function. What is the meaning of harmonic function? So any function f of z, इसमें लिखिए a function f of z is called harmonic, is called harmonic function if double derivative of f with respect to x plus डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाती है, तब मैं ये बोलूंगा कि हमारे पास एफ क्या होगा, एक हार्मोनिक फंक्शन होगा. क्लियर? सो अब मैं आगे बेसिकली रिजल्ट्स ऑन दिस
हार्मोनिक फंक्शंस, इनके क्या रिजल्ट्स होते हैं, एंड एक हमारे पास होता है कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शंस और इनके PYQs जो कि हमारे पास नेट एंड गेट एग्जाम्स में आए, ये मैं आप लोगों को कल करा दूंगा। ओके, थैंक यू।